Hi everyone, welcome back to the class. Today, what I've planned for you today is slightly different from what we otherwise do. In fact, it's going to be much better. Okay, the thing is that because of some reason, yet again, I am unable to take a live class because of some technical reason. Okay, so probably this is going to be the last time we are going to be meeting on a recorded class. Okay, now coming back to what I wanted to say to you. Today, I'm going to take up a revision with you of the chapter of directors, and we are going to be discussing about the types of directors. Okay, and the slides that you are going to see today in the class are from the slides that I prepare for my Unacademy lectures. Okay, so you will get a little idea as to what goes on the application. Okay, so I thought that from now onwards, that is obviously since the live is going to start, we are going to be studying only on slides. Okay, we are not going to be studying through the book, I mean the black and white stuff anymore. It's going to be more colorful, it's going to be more interactive, plus it's going to be a nice summary of everything. Okay, and that is going to really help you. So let's start with the class now. I'll quickly give you an introduction of myself. My name is Alina Reis. I'm a chartered accountant, and I have been into teaching industry for roughly 5 years now. It's going great. It's really going great. You'll become a CA. You will also feel like being a teacher. There is a good chance that half of you are going to step into teaching, probably. So yeah, let's move forward. This is Unacademy subscription. I would like to take a minute to inform you about it, and then we would start with our normal lecture. Okay, Unacademy subscription is available on the Unacademy Learning app. All right, you can take whichever plan you want to. There are 5 plans which are available here. Okay, and my name code is there, Alina CA, which you can use to avail your 10% discount. Okay, be careful about the spelling of my name. I don't use an I. Okay, and the speciality about this price is that it covers all your 8 subjects. That's the best part of it. It's quite cheap actually. Let's move forward. Unacademy Learning app, that is what you have to download. Then you, on the top left corner, you have a plus icon that you will have to click to take your course, to choose your course, that is CA Finals, and your subscription, get subscription. And again, you choose your plan and then you apply the code and you buy the subscription. Okay. All right. So now we start with what we have to start with. Types of directors. This is a revision class. Okay. It will give you a good idea about what it's going to give you a recall of whatever we've done till now, and it's also going to give you an idea as to how the classes on Unacademy look like. And these slides are all obviously prepared by me, and I try and keep them as precise as possible, and I've included a few questions also. So all the nice questions that I see here and there in CA final exams, I pick my questions from the old question papers of CA finals. So all the questions that you're going to see on the slides today are from your previous exams, and that is why they are extremely relevant for you, and they are going to give you some of them are going to maybe give you a hard time understanding what should be the answer. But today the questions are going to be comparatively easier. In the future classes, I'm going to raise the level of the questions, okay, so that your brain equips to it, and it grows. That is what the intent is behind all of this. So let's start with the first slide, and I'm going to start with some questions with you. Okay, this is my first question. Questions from previous lecture. So this is again the previous lecture that I'm referring to over here is from the Unacademy class that we had with the students over there on the app, and these are special classes going on. Okay, absolutely free. Why don't you use them? So questions from previous lecture, CA Final 2002. Let's see what 2002 had asked them. A is a director of ABC Limited which failed to repay the deposits from 1st of April 18 onwards, and default continues. But ABC is regular with filing annual accounts and returns. A is also a director of PQR Limited.
whether A is disqualified. So first thing that you have to answer is, if he's disqualified under section 164, is he required to vacate the office in PQR Limited? Okay, so that is section 167 that they are talking about. Is it possible for board of DEF? This is an absolutely different company, okay, and they are asking you if DEF Limited is allowed to appoint A despite whatever is going on with the other directorships that he's been holding. To appoint A as an additional director at a meeting to be held on 15th of May. Would your answer be different if A ceased to be a director of ABC by resignation on 1st of March 2019? So let's underline the key points that we have to look into. Before you place your answer. So first thing is that they have failed to repay the deposits. Okay. Then default has continued. But the company in which A is a director, is regular with filing annual accounts and returns. So what? Deposits is something that is enough in itself. If you haven't repaid the deposits, that is enough in itself to disqualify you. Okay, so now he is asking you, the question is asking you if A is disqualified. Yes, of course he's disqualified. Let's quickly see. Okay, before I show you the answer, let's talk a little about it. If there is a default in repayment of deposits, it's going to be counted for a period of 1 year. So default happened on the 1st of April 18. He will be disqualified on the 1st of April 2019. Okay, even if the company has been regular with filing of annual accounts and returns. Okay, तो दोनों में से कोई भी अगर पूरा होता है तो आप दोनों, जो आपका 164(2) है जिसके अंदर ये प्रोविजंस मेंशन्ड हैं, 164(2) में ये लिखा हुआ है, अगर आपने एनुअल अकाउंट्स वगैरह आपने फाइल नहीं किए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फाइल नहीं किए फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years, ओके, या फिर और आपने डिपॉजिट्स रीपे नहीं किए, डिबेंचर्स को रीपे नहीं किया जो ड्यू हो चुके हैं, या आपने डिक्लेयर डिविडेंड रीपे नहीं किया और 1 साल इस फॉल्ट को कंटिन्यूड है, 1 साल हो चुका है, देन इन दैट केस, बोथ दीज केसेस, आप डिस्क्वालिफाइड हो एज अ डायरेक्टर. ओके, बट आपको डिफॉल्टिंग कंपनी में कंटिन्यू करना होगा. आप किसी और कंपनी में अगर एज अ डायरेक्टर वर्क कर रहे हो तो उस कंपनी को आपको वेकेट करना पड़ेगा, उस ऑफिस को आपको वेकेट करना पड़ेगा. आप वहाँ पे डायरेक्टर नहीं रह सकते. ठीक है, तो जल्दी से देख लेते हैं आंसर क्या कहता है. अच्छा, एक चीज़ और पूछी गई है, एक और कंपनी है DEF, वो ये पूछ रहे हैं उनकी 15th of May 2019 को मीटिंग होने वाली है, तो क्या वहाँ पे नॉट रीअपॉइंट, क्या वहाँ पे वो अपॉइंट हो सकता है? वो अभी तक वहाँ पे डायरेक्टर है नहीं. तो आंसर है नो. आप 5 साल तक के लिए डिस्क्वालीफाई होते हो. अगर आप जिस कंपनी में डायरेक्टर हो उस कंपनी ने ऐसी कोई डिफॉल्ट करी है तो आप 5 साल के तक के लिए डिस्क्वालीफाइड हो. आप 2019 में अपॉइंट नहीं हो सकते एज एन एडिशनल डायरेक्टर. क्या आपका आंसर अलग होता अगर उसने 1st of March 2019 को रेजिग्नेशन दे दिया होता? हाँ, आंसर अलग होता, क्योंकि देखिए डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट हो रही है आपकी 1 अप्रैल 2018 को. उन्होंने फेलियर है उनका पेमेंट का, दे कुड नॉट मेक द पेमेंट, राइट. तो 1 साल बाद डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट होती है. अगर उसने 1st of April 2019 से पहले रेजिग्नेशन कभी भी दे दिया है तो ऑब्वियसली फिर अट्रैक्ट नहीं हो पाई ना डिस्क्वालिफिकेशन. इन दैट केस आप डिस्क्वालिफाइड नहीं होगे और आप DEF में भी अपॉइंट हो पाओगे. फिर आगे बढ़ते हैं, जल्दी से आंसर देख लेते हैं. आंसर मैंने, लगता है आंसर लगाया नहीं है इसमें, आंसर छूट गया, बट मैंने आपको आंसर बता दिया है पूरा. ठीक है, तो आंसर वही था, वो स्लाइड शायद रह गई है इंक्लूड होने से यहाँ पे, माय मिस्टेक, सॉरी. क्वेश्चन नंबर 2, नेम द फॉर्म. आपको ये 5 फॉर्म्स के बारे में मैंने मेंशन किया है. आपको मुझे ये बताना है which form is used, the DIR form I'm talking about, which form is used in which of these situations. Okay, so let's start naming the forms. This is, as I said, this is a revision class. I don't really have anything new for you. I just want to give you a little idea as to how things go on the application when you take classes. Okay,
So to report changes in particulars to central government. All right. If the director, so I haven't really mentioned here director we are talking about. Okay, so this one is about director, the top one. The director wants to report changes in his particulars to central government. Which form should it be? Can you think of the number? So before I move on to the next slide, or before I give you the answer, I'm going to give you a time of 5 seconds for you to think about the answer. Okay, the answer is 6. All right. Then intimation. So this is DIR 6. This is DIR 6. Please excuse me for my writing. It's not really something that I'm doing on purpose. The pen does not really work proper on the recordings. Okay. But when we are going to hold live classes, hopefully from tomorrow, then the pen will properly work. So this won't be a problem. Another one, intimation of disqualification to company. So now the director is informing about the disqualification. So basically it should be, what should it be? It should be DIR, you know the number, DIR 8, right? Then let's quickly do this. Company to registrar on making a default under section 164(2). So now company has to make, has to intimate the registrar. That will be DIR 9. All right. Consent to company to act as a director. So DIR 2 has to be filed in this case. Okay. Then company to registrar such consent of director. Company has to inform the registrar. That will be DIR 12. Here are your answers. Okay. Quickly take a look of them. Take a look at them. Let's move forward now. Question number 3. This is another question. I hope I have an answer to this one for you. Yes, I do have one. Okay. K is director of AB Limited and PQ Limited. AB was regular. अच्छा, so there are two companies they are talking about. एक हो गई आपकी AB Limited, एक हो गई आपकी PQ Limited. Okay. AB Limited was regular in filing annual returns but did not file annual accounts. For which years? 2016, 17, 18. 3 साल के लिए एनुअल अकाउंट्स मिस करें फाइल करना. किसने? पहली वाली कंपनी ने, AB लिमिटेड ने. ठीक है, AB लिमिटेड ने. AB Limited did not pay interest on loans taken from public financial institutions from 1st of April 2017 and also failed to repay the deposits and the default continues. ठीक है, तो देखो पहली बात तो एनुअल अकाउंट्स को फाइल नहीं किया 3 साल तक AB लिमिटेड के. फिर उसने इंटरेस्ट ऑन लोन पे नहीं किया पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का. वो भी गलती को हुए हुए 2 साल हो गए. उस वाली गलती को भी 2 साल हो गए. एंड ऑल्सो फेल टू रीपे द डिपॉजिट्स. और ये सारी की सारी गलतियां इनकी कंटिन्यूड हैं. आपको ये बताना है क्या ये डिस्क्वालिफाइड हैं. भाई सीधी सी बात है, दो गलतियां हुई. देखो 3 मिस्टेक्स यहाँ पे मेंशन करी गई हैं जिसमें से दो पे 164(2) अप्लाई होगा. 164(2) यहाँ इन 2 सिचुएशंस पे अट्रैक्ट होता है, थर्ड वाली पे अट्रैक्ट नहीं होता है. कौन सी वाली ऐसी है जिस पे अट्रैक्ट नहीं होता है? Did not pay interest on loans taken from public financial institutions. देखो पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लोन्स और उनके इंटरेस्ट के बारे में 164(2) में कुछ इंक्लूडेड नहीं है. ओके, तो उसके लिए वो डिस्क्वालीफाई नहीं होगा. मगर जो फाइनल अकाउंट्स फाइल नहीं हुए हैं AB के 3 साल तक के लिए, और दूसरा क्या था, जो डिपॉजिट्स का रीपेमेंट नहीं हुआ है और वो भी गलती को टाइम हो गया, 2 साल के करीब हो गए, उन दोनों के लिए वो डिस्क्वालिफाइड है. ठीक है, तो आपके पहले सवाल का जवाब है यस, ही इज डिस्क्वालिफाइड. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2, कैन ही कंटिन्यू एज अ डायरेक्टर इन AB एंड PQ लिमिटेड. तो वो दोनों के लिए पूछ रहे हैं. आपको मालूम है डिफॉल्टिंग कंपनी में आपको कंटिन्यू रहना होता है. अदरवाइज अगर सारे डायरेक्टर डिफॉल्टिंग कंपनी के विकेट कर देंगे ऑफिस, तो डिफॉल्ट कौन ठीक करेगा, कौन फॉर्म्स को फाइल करेगा, कौन फाइनल अकाउंट्स को फाइनलाइज करवाएगा,
कौन ऑडिट करवाएगा, कौन क्या करवाएगा, कैसे होंगी चीज़ें, नहीं पॉसिबल है ना। तो इस वजह से आपको डिफॉल्टिंग कंपनी में कंटिन्यू करना होता है। मगर जो दूसरी कंपनीज होती हैं आपकी, जितनी भी 5, 7, 8, 10 जितनी भी कंपनीज हैं, उन सब में आप डिस्क्वालिफाइड हो टू एक्ट एज अ डायरेक्टर। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। Can he seek reappointment when he retires by rotation in AB Limited to be held on September 2018? तो अब ये उसी कंपनी की बात कर रहे हैं, AB Limited, जिसके बारे में इतनी देर से बातचीत चल रही है, जिस कंपनी ने गलतियां करी हैं, उसी के बारे में पूछ रहे हैं क्या वो वहां पे रीअपॉइंट हो सकता है 2018 में? नहीं हो पाएगा रीअपॉइंट। क्यों? क्योंकि वो किसी भी कंपनी में रीअपॉइंट या अपॉइंट नहीं हो सकता फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years। 5 साल का आपका डिस्क्वालिफिकेशन होता है ये 164(2) वाला। ठीक है, चौथे पॉइंट पे आ जाते हैं। इज ही एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज एन एडिशनल डायरेक्टर इन XY लिमिटेड? देखो, आप चाहे एक नॉर्मल एक ऑर्डिनरी डायरेक्टर की बात करो या आप एक एडिशनल डायरेक्टर की बात करो, रूल्स यहाँ पे इस केस में सेम है। आप अपॉइंट नहीं हो सकते, चाहे आप एक डायरेक्टर की तरह अपॉइंट हो रहे हो, चाहे आप एडिशनल डायरेक्टर की तरह अपॉइंट हो रहे हो। फॉर एनी काइंड ऑफ सच एन अपॉइंटमेंट यू आर डिस्क्वालिफाइड फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years। लेट्स क्विकली लुक एट द आंसर्स नाउ। यू टेक अ लुक ऑफ द क्वेश्चंस। और अभी आप डाउनलोड तो नहीं कर पाओगे पीडीएफ को यहाँ पे, क्योंकि ये पीडीएफ आपकी अनअकैडमी पे आपको मिल जाएगी। आप वहाँ से क्लास के बाद इसको डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे नहीं कर पाओगे क्योंकि आई थिंक यहाँ पे नहीं कर पाओगे बट हाँ, जो लाइव क्लासेस होती हैं उसके अंदर आपको पीडीएफ के लिंक मिल जाते हैं। तो लाइव क्लासेस में जो कल से इंशाल्लाह होंगी, उसमें आपके जो भी क्वेश्चंस वगैरह डिस्कस होंगे, उसके लिए उसकी एक पीडीएफ एक अच्छी सी बना के अलॉन्ग विद माय रिमार्क्स जो मैंने उसमें लिखे होंगे उस टाइम पे पढ़ाते वक्त, वो सारा आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक होता है, वहाँ से आप डाउनलोड कर पाओगे। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं, आंसर पे आ जाते हैं। ही इज़ डिस्क्वालिफाइड, ये तो हम बात कर ही चुके थे। ओके, जस्ट अ सेकेंड, जस्ट वॉन्टेड टू टेक अ लिटिल लुक एट द टाइम। अभी टाइम है हमारे पास। सो ही इज़ डिस्क्वालिफाइड। कैन ही कंटिन्यू इन AB लिमिटेड? मैं जवाब देते देते सवाल पे आ गई। ही कैनॉट, हाँ, ही कैनॉट कंटिन्यू इन PQ लिमिटेड बट ही कैन कंटिन्यू इन AB लिमिटेड। कैन कंटिन्यू क्या, ही विल हैव टू कंटिन्यू, ही विल नॉट वेकेट हिज ऑफिस इन AB लिमिटेड। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 पे आ जाओ। कैनॉट बी रीअपॉइंटेड इन एनी कंपनी फॉर 5 years। 5 साल के लिए वो किसी भी कंपनी में अपॉइंट नहीं हो सकता एज अ डायरेक्टर। नॉट एलिजिबल टू बी रीअपॉइंटेड ऑल्सो। ठीक है, तो ये चारों सारी की सारी बातें मैंने आपकी क्लियर कर दी। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम जरा थोड़े बहुत टाइप्स ऑफ डायरेक्टर्स को डिस्कस कर लेते हैं। सवाल जवाब तुम्हारे खत्म हो गए। ठीक है, तो फर्स्ट डायरेक्टर्स पे आ जाओ। दिस इज सेक्शन 152(1). देखो, सेक्शन 152 इज ऑल अबाउट अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स। 152(1) जो है उसमें आपका पहला पॉइंट होता है वो फर्स्ट डायरेक्टर्स के बारे में बात करता है। क्या बात है, चलो जल्दी से देख लेते हैं। नेम्स आर स्पेसिफाइड इन आर्टिकल्स। तो पहली बात तो ये कि आर्टिकल्स नेम को स्पेसिफाई कर देते हैं कि हमारी कंपनी के फर्स्ट डायरेक्टर्स कौन होंगे। फर्स्ट डायरेक्टर समझते ही नाम से पता चल रहा है, फर्स्ट डायरेक्टर्स वो लोग होते हैं जो कंपनी इनकॉर्पोरेट होते ही जो पहले डायरेक्टर्स होते हैं। क्योंकि कंपनी जब जन्म होता है कंपनी का, एक छोटे बच्चे की तरह वो दुनिया में आती है, तो उसको कोई तो चाहिए एज पेरेंट्स जो उसको रन कर सके। कौन संभालेगा कंपनी को, कोई तो चाहिए। तो फर्स्ट डायरेक्टर्स वो लोग होते हैं जो कंपनी के पैदा होते ही उसका ख्याल रखना शुरू करते हैं। ठीक है, तो नेम्स आर स्पेसिफाइड इन आर्टिकल्स। आर्टिकल्स में लिखा होता है, मतलब बच्चे के माथे पे लिखा हुआ होता है कि उसके पेरेंट्स कौन है, उसको कौन ध्यान रखने वाला है अगले कुछ टाइम तक। एंड व्हेन द आर्टिकल्स आर साइलेंट, तो क्या होता है, जब आर्टिकल साइलेंट होते हैं तो फर्स्ट डायरेक्टर्स टेबल F में, रेगुलेशन कंटेन्ड इन टेबल F, टेबल F जो है पब्लिक कंपनीज की टेबल है। ठीक है, तो जब आपका आर्टिकल साइलेंट होते हैं तो फर्स्ट डायरेक्टर्स डिसाइडेड बाय मेजॉरिटी ऑफ सब्सक्राइबर्स टू मेमोरेंडम। तो जिन्होंने भी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पे साइन किया होता है, जो उसके सिग्नेटरीज होते हैं, जो सब्सक्राइबर्स होते हैं उसके, उनकी मेजॉरिटी डिसाइड करती है। मतलब अगर लेट्स से 5 लोग हैं तो 3 लोग जिसको बोलेंगे मिनिमम, हमें मेजॉरिटी चाहिए डिसाइड करने के लिए कि कंपनी के फर्स्ट डायरेक्टर्स कौन होंगे। जनरली ऐसे मुद्दे कोई प्रॉब्लम करते नहीं है। कंपनी की शुरुआत में तो लड़ाइयाँ नहीं होती होंगी, आई एम अज्यूमिंग। हाँ, बट शुरुआत में एक्चुअली लड़ाइयाँ उतनी नहीं होती हैं, बाद में ज़्यादा होती हैं, अगर होती हैं तो।
आपने तो सीए फर्म में काम कर रखा होगा, आपको पता ही होगा क्या चलता रहता है, सब पता रहता है ना। चलो ओके, व्हेन द आर्टिकल्स आर साइलेंट और आपकी टेबल एफ अप्लाई नहीं हो रही, आपकी टेबल एफ अप्लाई नहीं हो रही है, नॉट एप्लीकेबल, फर्स्ट डायरेक्टर्स आर ऑल द सब्सक्राइबर्स टू मेमोरेंडम। तो जितने भी डायरेक्टर्स, जितने भी आपके मेमोरेंडम को साइन करने वाले लोग हैं, जो भी सब्सक्राइबर्स हैं उसके, वो सारे के सारे आपके फर्स्ट डायरेक्टर्स बन जाते हैं अगर टेबल एफ अप्लाई नहीं होती है। ठीक है, एक बार इसको जल्दी से पढ़ लो ताकि आपको आइडिया लग जाए और आप रिवीजन क्लास है, इसको रिवीजन की तरह करना। ठीक है, अपने नोट्स ले सकते हो, थोड़ा अपने पुराने कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। टेन्योर अंटिल डायरेक्टर्स अपॉइंटेड एज पर द एक्ट। तो आपका टेन्योर क्या होता है फर्स्ट डायरेक्टर्स का? जब तक आपकी मीटिंग के अंदर आपके डायरेक्टर, जनरल मीटिंग के अंदर आपके डायरेक्टर्स अपॉइंट नहीं हो रहे, तब तक का आपका टेन्योर होता है इसका। ठीक है, फर्स्ट डायरेक्टर्स का। उसके बाद तो नॉर्मल डायरेक्टर्स अपॉइंट हो ही जाते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। 1% कंपनी में डायरेक्टर कौन डीम होगा? देखो पहली बात तो ये 1% कंपनी डीम टू बी द डायरेक्टर, ये डीम टू बी द डायरेक्टर का क्या मतलब हुआ? द पर्सन हु हैज ओपन द कंपनी, जिसकी कंपनी है वो, हम उसी को डायरेक्टर मान लेते हैं, फर्स्ट डायरेक्टर। ठीक है, अनलेस उसने अपॉइंट ना किया हो किसी और को। तो 1% कंपनी में द ओनर इज डीम टू बी द डायरेक्टर अनलेस ही अपॉइंट समबडी। हो सकता है वो शुरुआत में ही अपॉइंट कर दे, वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, शुरुआत में भी अपॉइंट कर सकता है। भाई हो सकता है कोई ऐसी 1% कंपनी हो कि कोई फॉरेनर है, उसने खोली है वो कंपनी और वो इंडिया में रहता ही नहीं है, उसको कोई बंदा चाहिए जो इंडिया के अंदर उसकी फंक्शनिंग को संभाल सके, तो वो अपॉइंट कर सकता है किसी को शुरुआत में ही कंपनी की फॉर्मेशन के टाइम पे। ठीक है, तो ये चीज़ प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, पॉसिबल नहीं, ये हो सकती हैं। अ क्विक क्वेश्चन, व्हाट इज रेगुलेशन 60? व्हाट इफ होना चाहिए, ये गलती है यहाँ पे, ये इज नहीं होगा, ये इफ होगा। व्हाट इफ रेगुलेशन 60 of the table F is not applicable and all the subscribers are body corporates? तो पहली बात तो ये, जब आपकी टेबल F एप्लीकेबल नहीं होती है, ये वाला पॉइंट देखो, जब टेबल F एप्लीकेबल नहीं होती है तो सारे के सारे सब्सक्राइबर्स, मैंने ब्रैकेट में लिखा है इंडिविजुअल्स, जो इंडिविजुअल्स हैं, जो इंडिविजुअल्स ने मेमोरेंडम पे साइन किया है, वो फर्स्ट डायरेक्टर्स बन जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन में ही पूछा गया है कि व्हाट इफ सारे के सारे जो सब्सक्राइबर्स हैं मेमोरेंडम के, वो सारे के सारे लोग इंसान नहीं हैं, वो बॉडी कॉर्पोरेट्स हैं। अगर बॉडी कॉर्पोरेट हैं तो क्या करोगे? फिर तो आपका वो इंडिविजुअल की कैटेगरी में नहीं आते, तो इंडिविजुअल की कैटेगरी में नहीं आते तो फर्स्ट डायरेक्टर्स कौन होंगे? तो सीधा सीधा आंसर ये है कि फर्स्ट डायरेक्टर्स ऐसे केस में नहीं होंगे। ठीक है, वैसे आप इसके बारे में एक बार देखना, मैंने क्लास के अंदर तो ये होमवर्क दिया था, मगर आप क्योंकि ये हमारा कल हम मिलेंगे नहीं इस पर्टिकुलर स्लाइड के साथ, तो इस वजह से मैं आपको आंसर बता के जा रही हूँ, आप एक बार इसके बारे में सर्च ज़रूर कर लेना। ठीक है, डू योर रिसर्च अबाउट एवरीथिंग दैट वी स्टडी, छोटे छोटे नोट्स बना लिया करो, छोटे छोटे कीवर्ड्स लिख लिया करो। अच्छा हाँ, मैम ने फर्स्ट डायरेक्टर्स की बात की थी, थोड़ा इसके बारे में पढ़ लेता हूँ, और मैम ने मेमोरेंडम और टेबल एफ का मेंशन किया था, टेबल एफ क्या होती है, थोड़ा सा देख लेता हूँ टेबल एफ क्या होती है। इस तरह की चीज़ें आप करते रहोगे, आपकी नॉलेज के लिए बहुत अच्छा है। पेपर में चाहे वो चीज़ें रेलिवेंट हो चाहे ना हो, बट मैं तो ये कहती हूँ सीए फाइनल में आप ऑलमोस्ट बस समझ लो कगार पे हो रियल वर्ल्ड एंटर करने से पहले। जितनी आपकी नॉलेज होगी उतनी आपकी अर्निंग होगी फ्यूचर में। आपकी नॉलेज के ऊपर, आपके कॉन्फिडेंस के ऊपर, ये दो चीज़ों के ऊपर आपकी फ्यूचर की, आपका फ्यूचर टिका हुआ है। समझ लो आपकी सारी फ्यूचर की अर्निंग टिकी हुई है, आप क्या बनोगे, क्या करोगे लाइफ में, यही दो चीज़ें मैटर करेंगी, आपकी नॉलेज और आपका कॉन्फिडेंस। ठीक है, अब आ जाते हैं रोटेशनल डायरेक्टर्स के ऊपर। रोटेशनल डायरेक्टर्स अगेन देखो, बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगी क्योंकि डिटेल में जाने का कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि ये जो है ये टॉपिक्स ऐसे हैं जो काफ़ी बार हम डिस्कस कर चुके हैं, हमें बहुत अच्छे से आते हैं, बस क्विकली इसको रिवाइज करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे जल्दी से। ठीक है, पहली बात तो ये कंपनी के अंदर 2/3 मिनिमम 2/3, मैंने लैंग्वेज लॉ की थोड़ी सी चेंज करी है मगर ये बिल्कुल ठीक है। वहां पे एक मिनट,
वहाँ पे मिनिमम वर्ड यूज़ नहीं होता है, वहाँ पे नॉट लेस दैन इस तरह के शब्द यूज़ होते हैं। मैंने उसको चेंज किया है थोड़ा सा ताकि आपके लिए ज़्यादा आसान बना सकूं, ठीक है। मिनिमम 2/3 टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, तो आपके मिनिमम 2/3 डायरेक्टर रोटेशनल होने चाहिए, बाकी नॉन रोटेशनल हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। रोटेशनल डायरेक्टर वो होते हैं जो एजीएम पे रिटायर होते हैं रोटेशन से, ठीक है, चांस आता है। 1/3 डायरेक्टर्स हर बार रिटायर होते हैं ऑफ द टोटल नंबर ऑफ रोटेशनल। रोटेशनल डायरेक्टर्स आर अपॉइंटेड एट एजीएम और ईजीएम, ठीक है, वो एजीएम या फिर ईजीएम के अंदर अपॉइंट होते हैं। दे आर ओनली एप्लीकेबल टू पब्लिक कंपनीज। तो ये जो क्लॉज है रोटेशनल डायरेक्टर्स वाला सेक्शन है, ये आपका सिर्फ पब्लिक कंपनीज को अप्लाई करता है। टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, जब आप यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कैलकुलेट करते हो, इसके अंदर आपको क्या क्या एक्सक्लूड करना होता है? आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को एक्सक्लूड करना होता है और आपको नॉमिनी डायरेक्टर्स को एक्सक्लूड करना होता है, ठीक है। याद है आपको ये बातें, बस आपके रिवीजन के लिए देख लो एक बार इसको अच्छे से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये इतनी बड़ी कैसे हो गई? इस स्लाइड में कुछ प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं, हमको जरूरत भर की चीजें दिख रही हैं। दिस इज 152.7, ओके। नॉन रोटेशनल डायरेक्टर्स, तो रोटेशनल जो नहीं होते हैं वो नॉन रोटेशनल होते हैं, लॉ में भी इसी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। द डायरेक्टर्स हु आर नॉट रोटेशनल आर द नॉन रोटेशनल डायरेक्टर्स, ठीक है। ऑफ कोर्स इफ रोटेशन इज एप्लीकेबल ओनली टू पब्लिक कंपनीज, नॉन रोटेशन जैसा कॉन्सेप्ट भी ऑब्वियसली सिर्फ पब्लिक कंपनीज को ही अप्लाई करेगा। एप्लीकेबल टू पब्लिक कंपनीज, दे आर अपॉइंटेड इन जनरल मीटिंग, ठीक है, जनरल मीटिंग के अंदर अपॉइंटमेंट होता है। आर्टिकल्स में एम्पावर द बोर्ड टू अपॉइंट देम, तो आर्टिकल्स के अंदर ऐसा क्लॉज हो सकता है कि बोर्ड अपॉइंट करेगा नॉन रोटेशनल डायरेक्टर्स को, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। नॉट मोर देन 1/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, हमें मिनिमम 1/3 तो चाहिए ही है, नहीं नॉट मोर देन, देखो नॉट मोर देन, एक छोटी सी बात आपको रोटेशनल की याद दिला रही हूँ, हमें रोटेशनल में मिनिमम 2/3 तो चाहिए ही होते हैं, ठीक है। कहने का मतलब ये कि अगर कंपनी के अंदर 3 डायरेक्टर हैं तो 2 तो मिनिमम हमें रोटेशनल चाहिए, मगर मिनिमम का ये मतलब नहीं है कि तीनों रोटेशनल नहीं हो सकते, ऐसा मतलब नहीं है, तो तीनों भी रोटेशनल हो सकते हैं, ठीक है। लॉ क्या चाहता है? लॉ ये नहीं चाहता कि आप नॉन रोटेशनल ज्यादा रखो, दिस इज व्हाट लॉ वांट्स, क्योंकि जब डायरेक्टर्स रोटेशनल होते हैं तो उनकी बारी आती रहती है रिटायरमेंट की, और जब वो रिटायर होते रहते हैं जल्दी जल्दी तो वो अपना काम अच्छे से करते रहते हैं, क्योंकि अगर वो अच्छे से काम नहीं करेंगे तो वो रिटायर होंगे, उनको रीअपॉइंट करा ही नहीं जाएगा जनरल मीटिंग में, उनका जो रिटायरमेंट होगा वो फाइनल होगा, उनको निकाल दिया जाएगा। तो लॉ ये चाहता है ताकि काम अच्छे से चले, सारे के सारे डायरेक्टर ज्यादा से ज्यादा रोटेशनल हो ताकि वो काम अच्छे से करते रहें, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, नॉट मोर देन 1/3, मतलब उन्होंने फिक्स कर दिया कि मैक्सिमम आपके 1/3 जो टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स हैं, मैक्सिमम 1/3, मतलब अगर 3 डायरेक्टर हैं तो उसमें से मैक्सिमम 1 डायरेक्टर आपका नॉन रोटेशनल हो सकता है। देखो आप दोनों सेक्शन की लैंग्वेज में पढ़ के देखो, एकदम ठीक बैठ रहा है। वहां पे कह रहा है मिनिमम 3 में से 2, और यहाँ पे कह रहा है 1 से, आउट ऑफ 3 1 से ज्यादा नॉन रोटेशनल नहीं हो सकता, तो दोनों कोहेरेंट हैं, दोनों एकदम एकदम फिट बैठ रहे हैं, एकदम सही बैठ रहे हैं। अगर आप मेरी बात समझ पा रहे हो, तो नहीं समझ पा रहे तो थोड़ा सा रिवाइंड करके वीडियो को देखना, तुम्हें मेरी बात समझ में आ जाएगी, ठीक है। वरना कमेंट में सवाल पूछ लेना, आई वुड लव टू आंसर योर डाउट। मैं डेफिनेटली मैं देखती रहती हूँ बच्चों के सवाल और जवाब देती रहती हूँ बीच बीच में, ठीक है। और हाँ, नॉन रोटेशनल डायरेक्टर्स के लिए दे मे बी अपॉइंटेड फॉर लाइफ, मतलब ये इतना रेलेवेंट नहीं है, लिखा हुआ है ठीक है, जान लो, मगर सवाल इस पे आना मुश्किल है, ठीक है, क्योंकि जनरली आपकी एक्सपायरी होती ही है, डायरेक्टर्स अपॉइंट होते वक्त उनकी टर्म होती है, या फिर वो रोटेशनल होते हैं, और सैकड़ों अदरवाइज चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से उनका ऑफिस खाली हो सकता है, चाहे वो कंपलसरी वेकेशन हो या उन्होंने रिज़ाइन कर दिया हो, कुछ भी हो ऐसा, ठीक है। बट हाँ, दे मे बी अपॉइंटेड फॉर लाइफ, ये इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि नॉन रोटेशनल डायरेक्टर्स के सेक्शन के अंदर ऐसा कुछ मेंशन नहीं है कि लाइफ के लिए अपॉइंटमेंट नहीं हो सकता। रोटेशनल में तो मालूम ही है रिटायरमेंट होना है,
मगर नॉन रोटेशनल में ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि लाइफ टाइम के लिए अपॉइंटमेंट नहीं हो सकता है अगले साल या अगले कुछ सालों में ये चीज़ लिख दें वो, बट अभी नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये एक सवाल है, आपको डिटेक्ट करनी है कॉन्ट्रोवेंशन अंडर सेक्शन 152। ये सवाल प्लीज़ इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसको कहीं लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो बेस्ट रहेगा। आपको ये चेक करना है कि क्या कॉन्ट्रोवेंशन हो रही है सेक्शन 152 की, मतलब ये कि रोटेशनल और नॉन रोटेशनल सही बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। और यहाँ पे हर केस में 6 डायरेक्टर्स हैं, आपको उसमें 2/3 1/3 वाला फंडामेंटल लगाना है और चेक करना है कि नंबर ऑफ रोटेशनल एंड नॉन रोटेशनल ठीक बैठ रहे हैं कि नहीं बैठ रहे हैं। ठीक है, देख लो एक बार जल्दी से इसको। सेक्शन सबसे पहला है आपका 6 डायरेक्टर्स, वो ये कह रहे हैं 6 डायरेक्टर्स हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, हमें क्या प्रॉब्लम होगी। चलो मैं तुम्हें आंसर्स के साथ ही एक्सप्लेन कर देती हूँ। आंसर्स ही नहीं है, ये आपके लिए सवाल है। मैं आपको इसमें से 7 पॉइंट्स है ना, ये इसमें से आपको 2 से 3 का आंसर बता देती हूँ। ठीक है, और बाकी का आप खुद करो। ओके, ये आपके लिए है, ये आपके माइंड को टेस्ट करने के लिए, आपको करवाने के लिए। आपको प्रॉब्लम हो आप कमेंट्स में पूछ लेना, जवाब दे दूंगी मैं। ठीक है, 6 डायरेक्टर्स, पहले वाले में लिखा है सिर्फ 6 डायरेक्टर हैं, कुछ नहीं बताया रोटेशनल के नॉन रोटेशनल, तो आपको अपनी मैथ खुद लगानी पड़ेगी इसमें। ठीक है, आपको ये लिखना होगा कि 6 डायरेक्टर्स में तो कोई कॉन्ट्रोवेंशन पता नहीं चल रही है, अनलेस 2/3 मिनिमम आपके रोटेशनल ना हो। तो ये बात आपको करनी पड़ेगी कि 4 आपके मिनिमम रोटेशनल होने चाहिए। अगर 6 डायरेक्टर हैं टोटल, तो आपके 4 मिनिमम अगर रोटेशनल हैं, देयर इज नो कॉन्ट्रोवेंशन। ठीक है, अगर 4 मिनिमम आपके रोटेशनल हैं तो कोई कॉन्ट्रोवेंशन नहीं है। अगला पॉइंट देखो, पॉइंट नंबर 2 देखो। पॉइंट नंबर 2 कहता है 6 डायरेक्टर्स, 6 डायरेक्टर्स 5 आर रोटेशनल। हाँ, मिनिमम हमें 4 चाहिए ना, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं। तो 5 आर रोटेशनल, कोई प्रॉब्लम नहीं है, होने दो 5 रोटेशनल। ठीक है, 6 डायरेक्टर्स ऑल आर रोटेशनल, सारे के सारे रोटेशनल है, हमें क्या प्रॉब्लम है। सही है, मैं कह तो रही हूँ मिनिमम 2/3 चाहिए ना, मैक्सिमम की कोई कंडीशन नहीं है। लॉ तो यही चाहता है कि सारे रोटेशनल हो, लॉ के लिए तो यही अच्छा है। ठीक, 3 आर रोटेशनल, कॉन्ट्रावेंशन है हमें 3 नहीं, हमें मिनिमम 2/3 चाहिए। तो मतलब अगर 6 × 2/3 करोगे, ये क्या होने लग जाता है, मैं ढंग से लिख रही होती हूँ, ये कुछ और ही बन जाता है। रुक जाओ, बिल्कुल कंट्रोल नहीं होता सच में कभी कभी इसके ऊपर। अरे मैं नहीं लिख रही है, ऐसे ही समझ लो। ठीक है, मिनिमम 2/3 चाहिए ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आपके सारे के सारे हैं, मगर अगर 3 रोटेशनल है तो फिर कॉन्ट्रावेंशन है। मैं आगे बढ़ रही हूँ, बाकी का सवाल आप इसको अच्छे से पढ़ के इसको सॉल्व कर लेना, कोई प्रॉब्लम आए कमेंट्स में पूछ लेना। लास्ट के 3 पॉइंट्स आपके करने के लिए छोड़ दिए। हाउ मेनी रिटायर बाय रोटेशन एट एवरी AGM, कितने जितने भी आपके रोटेशनल डायरेक्टर्स होते हैं उसमें से एक्चुअली के सारे रिटायर हो जाएंगे? नहीं, 1/3 रिटायर होते हैं। ठीक है, नियरेस्ट टू 1/3, यहाँ पे मिनिमम वर्ड यूज नहीं हुआ है, यहाँ पे नियरेस्ट वर्ड यूज हुआ है। तो 1/3 में वो ये कहते हैं नॉर्मल मैथमेटिकल राउंडिंग कर लो और देख लो, अगर 1.3 है तो 1 डायरेक्टर रिटायर होगा, अगर 1.6 है तो नियरेस्ट हो गया 2, तो 2 आपका रिटायर होंगे। अगर आपके 3.4 है तो इसका मतलब 3 डायरेक्टर्स रिटायर होंगे। मतलब नॉर्मल राउंडिंग करनी है। अगर 5 या 5 से ज़्यादा आ रहा है डेसिमल तो आप ऊपर वाले की तरफ चले जाओगे, अगर 5 और 5 से कम आ रहा है तो आप नीचे वाले की तरफ चले जाओगे। ठीक है, ओके, पढ़ लो एक बार जल्दी से इसको मेरे साथ। नियरेस्ट टू 1/3, हाँ, बट आर्टिकल्स में प्रोवाइड के सारे आपके रिटायर होंगे। आर्टिकल्स में प्रोवाइड दैट ऑल द रोटेशनल डायरेक्टर्स आर गोइंग टू रिटायर एट एवरी AGM। आर्टिकल्स में ये बात क्यों लिखी होगी? ताकि अगेन आई टोल्ड यू दैट ऑलरेडी, दैट सो दैट द कंपनी में वर्क मोर एफिशिएंटली एंड डायरेक्टर्स टेक मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ देयर वर्क। ओके, फर्स्ट हु हैव बिन लॉन्गेस्ट इन ऑफिस, तो फीफो बेसिस पे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फीफो याद रखना। ठीक है,
All my attempts at writing have failed miserably, and now I'm not going to attempt. लाइव में ये प्रॉब्लम नहीं आती है, ये सारी तभी आती है जब आप पहले से रिकॉर्ड कर रहे होते हो ना, तो ही आती है ये इशू. आई क्वाइट डिसलाइक इट एक्चुअली. अभी भी टेक्नोलॉजी में बड़े इश्यूज हैं भाई, सब कुछ सॉर्ट नहीं हुआ अभी, अभी बहुत चांस है, अभी दुनिया में बहुत कुछ करने का चांस है. तो कभी कभी, अब मैं जब छोटी थी तो मुझे ऐसा ख्याल आता था कि इतना कुछ हो गया है, मैं क्या करूँगी आगे जाके, ऐसी फीलिंग आती थी मुझे. सब कुछ तो हो गया है, इतने कुछ बन गया, एरोप्लेन्स बन गए, कंप्यूटर्स बन गए, सारे लोग जिन्होंने सक्सेसफुल होना था हो गए, मैं क्या करूँगी आगे जाके. तो वही मैं आपको बता रही हूँ कि देखो मेरा पेन तक नहीं ठीक से चल रहा है, अभी बहुत स्कोप है. देयर इज अ लॉट यू कैन डू स्टिल. ठीक है, सो देयर इज अ लॉट ऑफ स्कोप फॉर यू टू ग्रो एंड डू समथिंग रियली गुड इन योर लाइफ. ऑल द बेस्ट फॉर दैट. ओके, फीफो वाली बात हो गई हमारी. पॉइंट नंबर 3 पे आ जाओ. अगर कोई सेम डे पे 2 डायरेक्टर अपॉइंट हुए हैं तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के केस में एक टाइम ऐसा आएगा कि उन दोनों का रिटायरमेंट एक ही टाइम पे ड्यू हो जाएगा, राइट? तो उस टाइम पे कौन पहले रिटायर होगा, कैसे डिसाइड होगा? वो आपस में बात करके रिटायर हो सकते हैं कि भाई पहली बार तुम हो जाओ, अगली बार मैं तुम्हारे लिए सेक्रीफाइस कर दूंगा. तो म्यूचुअल अग्रीमेंट हो सकता है, ठीक है, म्यूचुअल कॉन्सेंट से हो सकते हैं. हो सकता है उनकी अच्छी दोस्ती हो, एक बंदा दूसरे के लिए खड़ा हो जाए, नहीं नहीं मैं करूँगा, मैं हो जाऊँगा रिटायर, तू रहने दे, ठीक है. फिर ड्रॉ ऑफ लॉट्स हो सकता है. अगर म्यूचुअल कंसेंट का केस नहीं है, वो दोनों कहते हैं नहीं तू रिटायर होगा, तू रिटायर होगा, तो वहाँ पे केस में आप लॉट्स से डिसाइड कर सकते हो, ड्रॉ ऑफ लॉट से, कि कौन रिटायर होगा. रैंडमली किसी एक का नाम आ जाएगा उसमें, ठीक है. फिर ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन कैन री अपॉइंट रिटायरिंग डायरेक्टर इफ लॉस्ट ही सीजेस टू बी. ऑब्वियसली एक ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन काफ़ी होता है रिटायरिंग डायरेक्टर को रीअपॉइंट करने के लिए. और अगर वो रेजोल्यूशन आपका फेल हो जाता है तो फिर ऑब्वियसली आप रीअपॉइंट नहीं हो सकते. गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा, एक सेकेंड. हाँ जी, हो गया. ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन वाला पॉइंट में टिक कर दे रही हूँ. टिक तो चल जाते हैं मेरे, टिक मेरे ठीक बनते हैं, इसके ऊपर टिक बना दिया करूँगी. कंपनी इंस्टेड में अपॉइंट समवन एल्स. भाई कंपनी की मर्जी है, वो तुमको चाहे तो रीअपॉइंट कर ले, तुम रिटायर हो रहे हो, या फिर वो चाहे तो किसी और को अपॉइंट कर ले तुम्हारी जगह पे. नॉट रीअपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट, किसी और का अपॉइंटमेंट कर ले आपकी जगह पे. या फिर वो ये चाहे तो वो कुछ भी कर सकते हैं, उनकी मर्जी है. दे मे रीअपॉइंट यू, दे मे नॉट रीअपॉइंट यू, इट्स कंप्लीटली अप टू देम. दे मे अपॉइंट समबडी एल्स इन फ्रंट ऑफ इन प्लेस ऑफ यू, एंड ऑल्सो दे मे नॉट अपॉइंट एनीबडी इन प्लेस ऑफ यू. दैट इज ऑल्सो पॉसिबल. देयर इज अ पॉसिबिलिटी वो कहें कि नहीं, हमारे डायरेक्टर्स का जो रिक्वायरमेंट है वो तो कंप्लीट हो रहा है, हमें ज़रूरत नहीं है एक और बंदा रखने की. वो भी पॉसिबल है, ठीक है. पढ़ लेते हैं एक बार. कंपनी इंस्टेड में अपॉइंट समवन एल्स प्रोवाइडेड नोटिस ऑफ कैंडिडेचर हैज़ बिन गिवन. ठीक है, हाँ, तो नोटिस ऑफ कैंडिडेचर जाना चाहिए मीटिंग के अंदर, मीटिंग के नोटिस के अंदर, ठीक है. आपने ये अपना पढ़ रखा है, पहले पुराने उसमें पढ़ रखा है, मीटिंग्स के बारे में आप शेयर होल्डर्स की पढ़ चुके हो, वहाँ आपने ये चीज़ें पढ़ ली होंगी. अप्लाई करो, पुरानी बातों को याद करने की कोशिश करो, 2 बातों को जोड़ने की कोशिश करो, ठीक है. कंपनी में डिसाइड नॉट टू रीअपॉइंट और अपॉइंट एनी अदर पर्सन. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. वुमन डायरेक्टर, जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं इसको भी. वुमन डायरेक्टर के केस में क्या होता है, पहली बात तो आप इसको याद रख लेना, ठीक है. ये है आपका 149(1) का सेक्शन 149(1) है, जिसको आप रूल 3 के साथ रीड करते हो, अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन रूल्स ऑफ डायरेक्टर्स. ठीक है, अब इसको मैं बना रहने देती हूँ, बार बार क्या डिलीट करूँ, कोई बात नहीं, ठीक है. तो क्या लिखा हुआ है, एप्लीकेबिलिटी क्या है लिस्टेड कंपनी के केस में, ठीक है. लिस्टेड कंपनी के केस में एक वुमन डायरेक्टर मैंडेटरी है, या फिर देखो पब्लिक कंपनी, और किस किस के केस में एप्लीकेबल है देख लो. पब्लिक कंपनी विद पेड अप कैपिटल मिनिमम 100 करोड़ एंड टर्नओवर 300 करोड़. बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है टर्नओवर 100 है और पेड अप कैपिटल कुछ और है, 10 करोड़ है, ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं. वो अक्सर 100 करोड़ को टर्नओवर का फिगर मान लेते हैं. टर्नओवर का फिगर नहीं है, पेड अप कैपिटल का फिगर है वो, ठीक है.
और मिनिमम वर्ड मैंने फिर से अपनी मर्जी से लगाया। आपको पता ही, आपके लॉ में मिनिमम वर्ड यूज ही नहीं होता, आपको पता है ना ये बात। हर जगह एट द लीस्ट, नॉट मोर देन, नॉट लेस देन, ऐसे शब्द यूज होते हैं। उनका अपना एक स्टाइल है। अगर आप पूछोगे मेरे से कि मैम ऐसा क्यों है, मेरे हिसाब से उनका अपना एक स्टाइल है, वो उनकी मर्जी है, और कोई बात नहीं है। मिनिमम शब्द भी ठीक ही है अदरवाइज। पब्लिक कंपनी विद पेड अप कैपिटल मिनिमम 100 crores, टर्नओवर 300 crores। वैकेंसी कैसे भरी जाएगी? अगर वैकेंसी हो गई, वुमन डायरेक्टर रिजाइन करके चली गई, ऐसे केस में वैकेंसी दो तरीकों से, दो टाइमलाइंस दी गई हैं। या तो 3 महीने फ्रॉम द वैकेंसी ऑफ दैट, फ्रॉम द डेट ऑन विच शी विकेट्स द ऑफिस, और फ्रॉम द नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग, दोनों में से जो भी बाद में है। तो अगर आपकी बोर्ड मीटिंग है 30 अगस्त को, और आपके 3 महीने कंप्लीट हो रहे हैं 15 अगस्त को, तो दोनों में से बाद 30 अगस्त है ना, तो 30 अगस्त तक आपको अपनी वैकेंसी फिल करनी होगी। ठीक है, 3 महीने की गाइडलाइन ऐसे केस में मान्य नहीं होगी। पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग और 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ सच वैकेंसी, विच एवर इज लेटर। वैसे तुम लोग को एक बात बोलूं, लॉ पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका बताती हूँ एक, इसके ऊपर एक अलग वीडियो बनता है, वैसे तो बनाऊंगी, इंटरेस्टिंग है। देखो, अगर आपको लगता है ना कि इतनी सारी चीज़ें याद कैसे रखें, मैं बता रही हूँ, आई एम अ टीचर, मैंने एक्सपीरियंस करी है ये चीज़। मैं पढ़ाती हूँ ना, तो पढ़ाने से बहुत जल्दी याद होता है, बहुत जल्दी याद होता है। अगर आपको लगता है ना आपको कन्फ्यूजन हो रही है, हर सेक्शन के अंदर इतनी बातें याद रखने के लिए, कैसे याद रखूँ, तो 2 तरीके हैं उसको याद रखने के। पहली बात तो ये कि खुद को पढ़ाओ, बोल बोल के पढ़ाओ। प्रिटेंड योर सेल्फ टू बी योर स्टूडेंट। किसी आईने के सामने बैठ जाओ, मिरर के सामने, और पढ़ाओ, एक अपने आप को पढ़ाओ, देखो कितना फर्क पड़ेगा, बिल्कुल फर्क पड़ेगा। ठीक है। और दूसरा तरीका है आपका केस स्टडीज। केस स्टडीज आपके माइंड को क्वेश्चन करती हैं, वो बहुत सारे सिनेरियो क्रिएट करती हैं आपके माइंड के अंदर। अच्छा ये तो हो सकता है, अच्छा नहीं वहाँ पे तो ऐसा लिखा था, तो वो भी तो हो सकता है, अच्छा नहीं यहाँ पे एक और चीज़ मैंने तीसरी बात पढ़ी थी। अब तीनों में से कौन सी एप्लीकेबल होगी? केस स्टडीज आपको इस तरह से टेस्ट करती हैं। और क्या होता है ना, बहुत वैरायटी है भी नहीं, देखा जाए तो हर सेक्शन के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 टाइप के सवाल बनते हैं, और आपको पता ही है इंपॉर्टेंट सेक्शंस कौन से हैं। आप उस इंपॉर्टेंट सेक्शन की अगर आप 3 टाइप की केस स्टडी कर लोगे, और उस केस स्टडी को 2 3 बार कर लोगे, आप चाहोगे बिना तो भी आप नहीं भूल पाओगे। मुझे सीए बने हुए इतना टाइम हो गया, ये सारी बातें, मुझे पुरानी भी बहुत सारी बातें याद थी, जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था उस टाइम की बात कर रही हूँ। पुरानी भी बहुत सारी बातें याद आ रही थी, पढ़ाते पढ़ाते सब याद आ रहा था। ऐसे ही होता है, माइंड है ना आपका, बहुत कमाल की चीज़ है। इस पे जितना जोर डालोगे, इसके साथ वो प्रॉब्लम नहीं है कि ज़्यादा जोर डाला तो ये फट जाएगा, नहीं, इस पे जितना ज़्यादा जोर डालोगे ये उतना अच्छा चलेगा। हाँ, बट एक पॉइंट के बाद हार्ट का स्ट्रोक हो सकता है और डेथ हो सकती है, उतना भी नहीं करना है। ठीक है, उससे सिर्फ थोड़ा पहले रुक जाना है। ठीक है, बहुत स्ट्रेस नहीं लेना है, बट माइंड के साथ वो चीज़ नहीं है कि ज़्यादा स्ट्रेस डाला तो ये फट जाएगा, बलून थोड़ी है कोई के फट जाएगा। ठीक है, चलो। 2 or more women directors वैकेंसी इन वन। अब देखो, अगर 2 या 2 से ज़्यादा women डायरेक्टर थी कहीं पे, तो लॉ ने तो सिर्फ एक बोली है ना, अगर दूसरी वाली छोड़ के चली गई तो आपकी मर्जी, आप चाहो तो रखो या चाहो तो ना रखो, आप उसकी जगह किसी आदमी को भी अपॉइंट कर सकते हो, ये भी पॉसिबल है। ठीक है, क्योंकि लॉ है यार, मैं थोड़ी ना बोल रही हूँ, लॉ बोल रहा है। आगे बढ़ते हैं। बोयो, ये एक सवाल है, देखती हूँ इसका आंसर मैंने आपके लिए लिखा है कि नहीं। लिखा है भाई, लिखा है। Board appointed Neha on 10th of September 2014. She was appointed to fill vacancy of a woman director which occurred on 30th June 2014. Examine the validity. अभी यहीं पे रुक जाओ, पहला सवाल यहाँ पे ख़त्म हो गया है। तो 10 सितंबर को वो अपॉइंट हुई थी। अच्छा, किसी की वैकेंसी फिल करने के लिए एक और वुमन डायरेक्टर की, जो कि हुई थी 30 जून को। तो चेक करते हैं 3 महीने कहाँ कंप्लीट हो रहे हैं। ठीक है, तो देखो ना, लॉ में लिखा है 3 months, तो 30 जून को हुई थी ना, तो 30 जून का आपका 30 जुलाई हो गया, अगस्त सितंबर, जुलाई अगस्त सितंबर, 3 महीने सितंबर में ख़त्म हो रहे हैं। हाँ, तो वो तो 10 सितंबर से पहले ही अपॉइंट हो रही है, 10 सितंबर से पहले ही अपॉइंट हो रही है।
मतलब 10 सितंबर को हो रही है, हमारे पास डेट तो एंड ऑफ सितंबर तक की अवेलेबल है, एंड ऑफ सितंबर तक 3 महीने हो रहे हैं ना, तो 10 सितंबर बिल्कुल वैलिड है। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं, एक बार देख लेते हैं। Board appointed Neha on 10th of September. She was appointed to fill vacancy of a woman director, which occurred on 30th June. Examined. अच्छा, ये सवाल ही लिखा हुआ है। ओह, उस आंसर में सिर्फ यस था, वो पूरा सवाल था। मुझे लगा मैंने आपके लिए और भी चीजें लिखी हैं। आप ये मत सोचना है किसी और ने लिखा है, मैंने लिखा है, मैंने लिखा है। मगर लिखे हुए टाइम हो गया ना, कभी कभी ध्यान से निकल जाती हैं बातें। इसको लिखे हुए काफी दिन हो गए मुझे। Will your answer differ if the board meeting was held on 8th of November and vacancy had been filled on 1st of November? अगर बोर्ड मीटिंग आपकी 8th of November को हुई होती, ठीक है, और वैकेंसी आपकी फिल होती 1st of November को, तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि देखो बोर्ड मीटिंग 8 नवंबर को हो रही है ना, तो उससे हमें तो बाद की डेट लेनी होती है ना, तो 3 महीने सितंबर में पूरे हो रहे हैं और बोर्ड मीटिंग नवंबर में हो रही है, ठीक। तो इसका मतलब हमको बोर्ड मीटिंग वाली डेट लेनी है, तो बोर्ड मीटिंग वाली डेट 8 नवंबर आ रही है, तो इसका मतलब 1 नवंबर को उसका जो वैकेंसी फिल हो रही है वो बिल्कुल वैलिड है। मगर देखने वाली एक इंटरेस्टिंग बात ये है, अगर आप नोटिस करो, वैसे तो देखो इस सवाल के अंदर वो चीज़ पूछी नहीं गई है, इस सवाल के अंदर नेहा के बारे में पूछा गया है, बट अगर आप नोटिस करोगे तो मेरे ख्याल से एक इसमें वो हो सकती है, एक कॉन्ट्रावेंशन हो सकता है, सेक्शन 173 का, अगर आपको याद आ रहा हो। बोर्ड मीटिंग्स के बारे में बात कर रही हूँ मैं, नवंबर में हो रही है और आपका गैप 120 डेज से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। इस केस में ऐसा फील हो रहा है कि शायद 120 डेज से ज़्यादा का गैप हो गया है, बट अगेन एज आई सेड, इस सवाल का डायरेक्शन वो नहीं है, आपको वो मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बट हाँ, अगर आप श्योरली आपके पास टाइम हो उस टाइम पे और आप अपनी नॉलेज को दिखाना चाहते हो, आप दिखा सकते हो, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो आपका अब आगे बढ़े, एक बार सवाल को फिर से देख लो, कोई प्रॉब्लम ना हो तो। ठीक, आगे बढ़ते हैं। बट हमें ये इन्फॉर्मेशन एग्जैक्टली मालूम नहीं है कि इससे पहले वाली बोर्ड मीटिंग कब हुई थी, इससे पहले वाली बोर्ड मीटिंग कब हुई थी, ये इन्फॉर्मेशन हमें एग्जैक्टली मालूम नहीं है। बट इफ से इससे पहले वाली बोर्ड मीटिंग 3 महीने पहले हुई थी, तो फिर उस केस में सितंबर की आखिरी तारीख ही आपकी वैलिड होगी, फिर 1 नवंबर की जो अपॉइंटमेंट है वो गलत हो जाएगी, ठीक है। अगर लेट से आपकी इससे पहली वाली बोर्ड मीटिंग हुई है जुलाई में, अगर जुलाई में हुई है, ठीक है, तो जुलाई में अगर बोर्ड मीटिंग आपकी अगली हुई है तो 30 जून को वैकेंसी हुई थी, तो जुलाई वाली डेट तो नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग वाली डेट हो जाएगी, और आपका 3 महीना सितंबर में कंप्लीट हो रहा है, तो 1 नवंबर का जो वैकेंसी की जो फिलिंग है वो गलत है, फिर वो गलत हो जाएगी 1 नवंबर वाली, ठीक है। विच एवर इज लेटर, क्योंकि वहां पे आपका 30 सितंबर लेटर हो जाएगा, 30 सितंबर की आपकी कंपेयर टू द बोर्ड मीटिंग जो कि जुलाई में हो चुकी है। जुलाई में बोर्ड मीटिंग हुई, 30 सितंबर को आपका 3 महीना कंप्लीट हो रहा है सवाल के अंदर, तो यहाँ पे अगर आप बाद वाली डेट लेते हो तो आपको ये वाली डेट लेनी होगी, इससे पहले अपॉइंटमेंट होना चाहिए था, फिर 1 नवंबर का अपॉइंटमेंट गलत हो जाएगा, ठीक है। बट हमें ये नहीं मालूम कि इससे पहले की मीटिंग कब हुई थी, तो थोड़ा सा आपको ये सारे सिनेरियोज मेंशन करने पड़ेंगे, ओके। ऑल राइट, आंसर एक बार देख लेते हैं। आंसर में बस मैंने यस लिखा है, बट मैंने आपको आंसर समझा अच्छे से दिया है, इसमें 2-3 सिनेरियो बन रहे हैं, आप अच्छे से सोच समझ के जवाब लिखना है इसका। बहुत अच्छा सवाल है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो प्लीज, बहुत अच्छा सवाल है, इसको प्रैक्टिस करना। आगे बढ़े, इंडियन रेजिडेंट डायरेक्टर, लॉ ये चाहता है कि कम से कम एक बंदा तो इंडिया के अंदर हो ज़्यादा टाइम के लिए, 180 डेज का क्लॉज है, ठीक है, रफली आधा साल समझ लो, रफली, ठीक है। हमने इनकम टैक्स की तरह इसको बहुत कंफ्यूजिंग नहीं बनाया है कि रेजिडेंशियल स्टेटस पूरा घुसा दें इसके अंदर,
बट मोटा मोटा 180 डेज लिख दिया लॉ ने कि 180 डेज के लिए अगर आप इंडिया के अंदर हो तो आप इंडियन रेजिडेंट डायरेक्टर की कैटेगरी में ठीक हो. एटलीस्ट वन डायरेक्टर हु स्टेज इन इंडिया for not less than 180 days during the financial year. For newly incorporated, apply proportionately. अगर नई नई इनकॉर्पोरेट हुई है तो हो सकता है 180 दिन का टाइम पीरियड अवेलेबल ही ना हो कंपनी के पास, तो आप प्रोपोर्शनेट बेसिस पे टाइम निकालोगे कि लगभग कितना 180 डेज के हिसाब से आप निकाल लेना कि प्रोपोर्शनेटली कितना आ रहा है, कितने दिन एक बंदे को कम से कम इंडिया में होना चाहिए. भाई इंडिया में कंपनी चला रहे हो, इंडिया के अंदर रहोगे नहीं, कंपनी कैसे चलेगी? फिर वहीं पे मिसमैनेजमेंट स्टार्ट हो जाएगा ना. तो मिसमैनेजमेंट, ऑपरेशन, इन सब चीज़ों से बचाने के लिए ये सारे क्लॉजेस बनाए गए हैं. ठीक है. इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स तो हम सबका फेवरेट टॉपिक है ना. देखने दो एक में कितना बचा है, अभी तो काफ़ी बचा है. आज शायद हमारा पूरा तो कंप्लीट नहीं हो पाएगा, बट जितना हो पाएगा उतना कर लेंगे. एक बार इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स देख लेते हैं जल्दी से. इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स में सेक्शन 149 में ये लिखा हुआ है, रेड विद रूल 4 एंड रूल 5. जल्दी जल्दी, आपने बहुत बार कर रखा है, बहुत टाइम नहीं लूंगी. एटलीस्ट 1/3 आपके होने चाहिए ऑफ द टोटल. ठीक है. किस केस में? लिस्टेड के केस में. लिस्टेड के केस में. और इंडिपेंडेंट 2 हमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स चाहिए अगर इन दोनों तीनों में से कोई कंडीशन आपकी पूरी हो रही है. पब्लिक कंपनी पेड अप कैपिटल मिनिमम 10 करोड़. अब यहाँ पे देखो पेड अप कैपिटल 10 करोड़ का है, वुमेन डायरेक्टर में 100 करोड़ का फिगर था, इसलिए कंफ्यूज मत होना. इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और वुमेन डायरेक्टर का केस अलग है. ठीक है. 10 करोड़ का मिनिमम आपका पेड अप कैपिटल है, टर्नओवर आपका 100 करोड़ का है, और टोटल आउटस्टैंडिंग लोन्स जो है आपके वो 50 करोड़ के हैं. लोन्स के अंदर डिबेंचर और डिपॉजिट्स भी आ जाएंगे, क्योंकि डिबेंचर और डिपॉजिट भी लोन होते हैं, कंपनी के काइंड ऑफ लोन्स होते हैं. ठीक है. तो यहाँ पे ध्यान रखना, वुमेन डायरेक्टर वाले केस से थोड़ा फर्क है. पेड अप कैपिटल है 10, टर्नओवर है 100. ठीक है. वहां पे था पेड अप कैपिटल 100 और टर्नओवर था 300. यहाँ पे 10 और 100 है, वहां पे 100 और 300 था. बार बार बोल रही हूँ ताकि याद हो जाए. और वहां पे टोटल आउटस्टैंडिंग लोन्स की कोई कंडीशन नहीं थी, यहाँ पे 50 करोड़ की है. वैकेंसी कौन फिल करता है? फिल्ड बाय बोर्ड, नॉट लेटर दैन. देखो ये चीज एग्जैक्टली सेम वुमेन डायरेक्टर वाली लैंग्वेज उठाई है इन्होंने. ओके. नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग और 3 months फ्रॉम सच वेकेंसी विच एवर इज लेटर. वेयर अ company ceases to fulfill the criteria for 3 consecutive years, it shall not be required to comply. 3 साल लगातार जब आप क्राइटेरिया मीट नहीं करते हो तब आपको कंप्लाई नहीं करना है. 2 साल तक करना पड़ेगा कि अगर आज खत्म हुआ आपका एप्लीकेशन क्राइटेरिया का, अगले 2 साल तक तो आपको करना पड़ेगा. तीसरे साल के बाद आपको नहीं करना है. ठीक है. मे बी रिक्वायर्ड टू अपॉइंट अ हायर नंबर ऑफ टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ मिनिमम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स ऑफ ऑडिट कमिटी. तो ऑडिट कमिटी में अगर आपको पता है ऑडिट कमिटी में कंडीशन होती है कि आपकी मेजॉरिटी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की होनी चाहिए. भाई क्यों? क्योंकि ऑडिट करवाना है भाई. ऑडिट से तो पता चलता है कि सब सही चल रहा है कि नहीं. वहां पे भी अगर तुम ऐसे डायरेक्टर्स को बिठा दोगे जो डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट नहीं है, तो ऐसे केस में तो प्रॉब्लम हो जाएगी. अनबायस्ड ओपिनियन नहीं आ पाएगा हमको चीज़ों का. ठीक है. तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को देख लो, ये बस सवाल के अंदर दिया हुआ है. बी लिमिटेड इज एन अनलिस्टेड कंपनी, पेड अप कैपिटल ऑफ 10 करोड़. 10 करोड़. ठीक है. 10 डायरेक्टर्स. सपोज इट हैज 5 डायरेक्टर्स इन ऑडिट कमिटी, हाउ मेनी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स शुड इट हैव? तो अनलिस्टेड है ना, अनलिस्टेड के लिए तो 2 डायरेक्टर चाहिए होते हैं हमको, 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चाहिए होते हैं. बट यहाँ पे ऑडिट कमिटी में है 5, तो हमें मेजॉरिटी के केस में 3 चाहिए होंगे ना, 3 इंडिपेंडेंट. तो 2 और 3 में हु इज विच इज मोर? 2 and 3 में आपका 3 इज मोर, तो आपको 3 लेने पड़ेंगे. ठीक है. आई थिंक आज के लिए इतना ही रखते हैं. ओके. आई होप आपने कुछ सीखा होगा आज की क्लास में. आई रियली होप. मेरा अंदर से दिल करता है कि जब भी क्लास ओवर हो तो बच्चों ने कुछ नया सीखा हो. अगर आपने अच्छा कुछ सीखा हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताना, मुझे मोटिवेशन मिलेगी. कुछ और आप कवर करना चाहते हो, कोई टॉपिक आपको परेशान करता है, आप मुझे कमेंट्स में बताओ तो मैं उस टॉपिक को कवर करूँगी. ठीक है. और उसके अलावा मेरा कोड आपको पता है, आप सब्सक्रिप्शन लेते वक्त वो 10% के लिए भूलना मत, अलीना CA कोड ज़रूर लगा देना ताकि आपको उसका फुल एडवांटेज मिल सके. अनअकैडमी ऐप पे 7:15 शाम में मेरी रोज़ क्लास होती है.
आप मुझे वहाँ ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है. That's it guys, I'll see you tomorrow and I'll also see you in the evening on my class. Okay, we are doing board meetings over there. Come join us, let's do some nice revision, let's learn something new, and let's grow together. Okay, bye, I'll see you again, take care.